क्या, बहुत हेडेक है। और वो यूनिफॉर्म है ना, इंडिया में तो यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, खाकी चड्डी और व्हाइट शर्ट, हम स्कूल पे थे तब ये सब। So he thinks that when I go to college, I will be more happy because I can wear whatever I want. So then he goes to the college. वाह, अभी तो कोई भी कपड़े पहन सकता। But he thinks that oh, I am not happy because I don't have a money. जिसके पास पैसा है उसके पास गाड़ी है, स्कूटर है, लड़कियां उसके पीछे बैठती है गाड़ी पे, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। जब भी मैं पैसा आ जाएगा, नौकरी मिलेगी, तभी मैं खुश हो जाऊंगा। तो वो अभी नौकरी की चिंता करने लगता है। फिर जब भी नौकरी मिलती है तो बोलता है अभी शादी हो जाने दो, शादी हो गई तो अच्छा है। शादी के बाद फिर और उसकी चिंता बढ़ जाती है कि अभी सबका खर्चा कैसे निकालूं। तो जब भी सैलरी लेके जाता है तो लोग उसको चाय कॉफी का पूछते हैं, जिस दिन सैलरी नहीं आई तो कुछ नहीं, कोई कुछ पूछता नहीं है ना। तो ऐसे है, तो चिंता है बढ़ती जाती है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि चिंता ये सबसे बड़ी बला है। तो हियर इसमें एक बीच में एक क्वेश्चन था, व्हाट इज टॉलर देन द स्काई, आकाश से भी ऊंचा क्या है। तो उसका आंसर था, मैंने वो बताया कि क्वेश्चन मिसिंग है, उसका आंसर है पिता। जैसे कि आसमान को देखने के लिए हमें ऊंचा देखना पड़ता है, वैसे ही बच्चे, when children, they look upon their father as an ideal. Whatever is the father, the child follows, So whatever a father behaves in the family, the child is going to follow the footsteps of father. They say like father, like son, ऐसा बोलते हैं ना इंग्लिश में। So because the father is the head of the unit, whole family का जो head है, so he has to have an ideal character. If father has a loose character, then the children will have loose character. And if father follows the good path, then the children will follow the good path. So whenever we become father or mother, through this, actually there's 4 questions, there are more questions we're going to talk, but through these 4 questions, it teaches us how to be responsible father and mother. And we should respect our parents, and we should control our mind and the worries. So this is one of those questions. Then next question is, who is the friend of a traveler? If you're traveling, who is your friend? Yourself. Who is the friend of the traveler? Now why he's asking this question is because Maharaj Yudhishthira is traveling. Now the purpose behind Yaksha Prajapati asking this question is that now after this 12 years of forest exile, they are going to go in 1 year of Agnatavas. And he is making sure that Maharaj Yudhishthira is ready for that. So Yaksha Prajapati is none other than Yamraj himself, who is the father of Yudhishthira Maharaj, who has come to protect his own children. Maharaj Yudhishthira is son of Yamraj. So Yamraj is come here to protect, and he is asking this question. Through this question, he is making sure that they are ready to go into the exile. We all are in a travel, isn't it? We are all in a journey. हमारी जीवन एक यात्रा है, और ये यात्रा में क्या होता है, तो हम जब यात्रा में जाते हैं तो कोई हमारे आसपास आता है, बैठता है, उठ के चला जाता है। वैसे ही हमारे आसपास लोग आते हैं और निकल जाते हैं, जैसे प्रभु जी आए और जाएंगे, ऐसे ही लोग आते हैं और जाते हैं। काफी सारे लोग थंडरबर्ड में आते हैं, कुछ दिन रहते हैं और निकल जाते हैं। काफी स्टूडेंट्स निकल गए। सो जीवन में लोग आते हैं और जाते हैं। सो महाराज युधिष्ठिर आस्किंग दिस क्वेश्चन to make sure Yaksha is asking this question to Maharaj Yudhishthira, making sure he's ready. So who is the friend of a traveler? Who is the friend of a traveler? Time. If you are traveling, who is your friend? Who is the friend of a traveler? See, if you... Samay. Samay. Is the time the friend of a traveler? Who is the friend of a traveler? It's a common sense question actually. Who is the friend of a traveler? सर्तः प्रवासतो मित्रम। जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है वो आपका मित्र हो जाता है ना? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है।
वो भी नहीं अकेले ट्रैवल करते नहीं, पहले लेकिन इसका difficult importance पूछो क्या और है? फिर एकदम लेकिन- सिंपल हो जाएगा। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके साथ जो ट्रैवल करता है वो आपका मित्र हो जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन दिस लाइफ, वी आर ट्रैवलिंग अलोन एक्चुअली, isn't? When we come in this universe, we come alone and we die alone, right? In this journey, who is your traveler, companion? आत्मा का कंपेनियन कौन रहता है? परमात्मा। परमात्मा, है ना? तो आत्मा जहां भी जाता है परमात्मा वहां रहती है। ये दो हमेशा के कॉमन कंपेनियन रहते हैं, है ना? तो जो मित्र है वो आपको कभी छोड़ता नहीं है ना? नो मैटर वेयर ही इज। सो द रियल कंपेनियन ऑफ अ आत्मा इज द Paramatma, one who travels. So there is a Atma and Paramatma within all of us. So when you talk to your friend, then your journey becomes easy. You know, कभी-कभी बात करते करते जल्दी टाइम निकल जाता है ना? तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर को प्रश्न पूछा कि who is the friend of a traveler? The next question is किम स्विन्मित्रम गृहसेतः। तो इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who is the friend of a householder? Householder बोलते हो जिसका शादी हो गया है, you know? गृहस्थ बोलते हैं। तो जो इंसान का शादी हो गया है उसका फ्रेंड कौन है? पहले तो प्रश्न पूछा कि तो जिसका शादी हो गया वो जवाब दे सकता है पैसे। कि who is the friend of a person who is married? Who is the friend? आपका कौन फ्रेंड है? Spouse, आपका कौन फ्रेंड है? वाइफ को छोड़ के वही फ्रेंड है आपके? वो फ्रेंड नहीं। Who is the friend of a householder? तो मालिक है। So भार्या मित्रम गृहेशता। A householder's true Wife. friend is his wife, spouse. spouse. तो इनका नाम से ठीक है। No? So husband and wife, they are the companion in this travel of the married life, you know. So marriage is described in Srimad Bhagavatam. What is marriage, you know? Sometimes we think that marriage is to produce children and then make a house and make a living and die. But in the Srimad Bhagavatam, the marriage is described and defined. What is marriage? Marriage is like a fortress. Fortress means एक बड़ा किला है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? अगर आप कोई दुश्मन है आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं तो कैसे करते हैं? With the fortress they attack on the enemies, you know. From there they fire. So marriage is a fortress. So what is this fortress for? From where we get protection? It is created by the husband and wife. Husband and wife make a fortress to protect themselves from the powerful enemies of uncontrolled senses. Because the senses are very, very powerful. And to make your life regulated and to progress your life with this regulated sense control towards Krishna consciousness, toward the spiritual life, husband and wife, they work together and they progress in the spiritual life. So they both are companions. Through this, they help each other to progress towards the Krishna consciousness. The role of wife is also mentioned very nicely in Srimad Bhagavatam. It is said that there is no difference between a good wife and a good intelligence. अगर आपकी बुद्धि अच्छी है तो आपके डिसीजन अच्छे जाएंगे। अगर आपकी बुद्धि, आपके पास बुद्धि नहीं है, अच्छी बुद्धि नहीं है, तो आप you'll fall down. Similarly, one who possesses a good intelligent wife, he can progress very rapidly in the life. अगर वाइफ में ठिकाना नहीं है तो लाइफ का ठिकाना नहीं है। इसलिए हस्बैंड एंड वाइफ दिस गो हैंड इन हैंड, यू नो। दो शादियां होने वाली है, एक अंशुल और प्रभु जी दोनों के दोनों के लिए लेसन है। Srila Prabhupada has given a nice instruction in Srimad Bhagavatam that how one should behave in a married life, and what is the role of husband and what is the role of wife to make their life successful, you know, married life successful. And he has given many formulas, but one of the formula which is very important, which I liked it, is the gratitude. That husband and wife relation, there has to be a gratitude. Gratitude यानी क्या? Appreciation, you know. Srila Prabhupada says that the health of the marriage depends upon health of the marriage, you know.
आपका हेल्थ जैसे खाने पीने के ऊपर है, एक्सरसाइज के ऊपर है, वैसे ही ये मैरिज का भी एक हेल्थ रहता है, लाइफ रहता है. मैरिड लाइफ will last as long as there is a healthy relationship. As long as the relationship becomes unhealthy, the married life breaks, and there are many instances. So Srila Prabhupada is saying that the health of the marriage depends upon the spouses respecting each other. And how is that? Respecting, honoring and appreciating each other as a Krishna's devotees. So when we say you are my wife and you say you are my husband, what does that mean? That you are the devotee of Krishna, and as a devotee of Krishna, we are working towards together to progress in Krishna consciousness, and I'm going to respect you and you're going to respect me as a devotees of Krishna. One thing is to progress in bhakti, in the spiritual life, if you offend, aparad, किसी का अपमान करते आप तो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते. वैष्णव अपराध इज द ग्रेटेस्ट ऑफेंस. किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए हमें, तो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हम. तो अगर आप हस्बैंड वाइफ का अपमान नहीं कर सकते, तो फिर वो रिलेशनशिप अनहेल्दी हो जाता है और फिर आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस नहीं कर सकते. इसलिए श्रील प्रभुपाद इज सेइंग दैट द हस्बैंड थिंक्स दैट इफ आई डू नॉट रिस्पेक्ट हर, then I am a Vaishnava aparadi. So if husband starts thinking like that in his mind, that I have to respect my wife as if she is the representative of Krishna. हम भगवान की मूर्ति का जितना हम सम्मान करते हैं, उतना ही सम्मान हम हमारे पार्टनर का करें, तो हमारा हेल्दी रिलेशन होता है. तो ये है ग्रेटिट्यूड. जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कृष्ण लीला में वन टाइम कृष्ण एंड बलराम, they were very young, they were about 6 to 7 years old, and they asked their friends, cowherd boys, that go and ask for bhiksha from those brahmans. Brahmans कुछ sacrifice यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने मित्रों को बोला कि आप जाके उनसे भिक्षा लेके आओ. तो ब्राह्मण के जो मेल जेट्स बैठे थे, सब ब्राह्मण पुरुष बैठे थे, they chased them away. Go away, we are doing sacrifice, we won't give you any diksha. So then Krishna and Balram said, okay, why don't you go to the wives of those Brahmins? ब्राह्मणी के पास जाओ और उनसे भिक्षा मांगो. और कृष्ण बलराम खुद गए उनके साथ ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने के लिए. और ब्राह्मणी जो थी, माताएं थी, बहुत काइंड थी. उन्होंने खुले हाथ से दक्षिणा दी, दान दक्षिणा दी थी उनको. और जब ही ब्राह्मण को मालूम पड़ा कि अरे भगवान खुद उनके पास गए थे और भगवान ने खुद उनसे दक्षिणा मांगी और उन्होंने दान दक्षिणा दी, तो ब्राह्मणों ने उनकी जो वाइफ्स थी उनके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड दिखाया कि आपने कौन सा पुण्य किया था पूर्व जन्म में कि आपको ये मौका मिला कि भगवान को देखने का चांस मिला आपको. तो हम कितने अपराधी हैं. तो ये जो उन्होंने ईगो नहीं दिखाया कि हम मेल है तो हमने मिस्टेक नहीं किया, आपने कैसे क्या कर दिया. सो दे हैड अ ग्रेटिट्यूड, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप. सो दैट इज एक्सप्लेन्ड हियर. Here again, Srila Prabhupada says, I am offending a Vaishnava and it will seriously impact my spiritual progress. So if we offend husband and wife, then spiritual progress is stopped. So the relationship does not progress further. So the next question is, who is the friend of a sick person? One who is sick, who is his friend? Doctor. अभी ये मित्रों की बात चल रही है. पहला क्वेश्चन था who is the friend of a person who is traveling. Then next question is who is the friend of a person who is married. अभी लास्ट तीसरा क्वेश्चन है who is the friend of a sick. The answer is right. For a sick person, the friend is Doctor. a doctor. और आगे का क्वेश्चन है कि who is the friend of a person who is about to die. जो मृत्युशैया पे है उसका कौन फ्रेंड है. हरे कृष्ण. Welcome everyone. Will be done in next 5 to 7 minutes. So Yaksha Prajapati, Yaksha is asking the question to Yudhishthir Maharaj that who is the friend who is about to die. So जो मृत्यु की शैया पे है उसका मित्र कौन है. So Maharaj Yudhishthir बोलते हैं हरे कृष्णा. For a dying person, the charity done during the lifetime serves as a friend. जीवन में दान और दक्षिणा का बहुत महत्व है.
है ना। मृत्यु के समय क्या काम में आता है? तो अगर जीवन में कुछ दान दिया है गलती से भी, तो गलती से भी दान दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? कभी कभी दान हम, आप आगे आ सकते हैं, यू कैन कम हियर और यू कैन सिट ऑन द चेयर, देयर इज राइट चेयर देयर। सो दान गलती से भी आपने कर दिया, और यू आर सिटिंग राइट इन द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, तो आपको वो अगले जन्म में काम में आ सकता है। इसलिए जो मृत्यु के शैया पे है उसका रियल मित्र है दान, चैरिटी। कभी भी दान हमें छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। जो भी हमारी यथाशक्ति है वो हमें दान करना चाहिए। 1 पैसा है, 2 पैसा है, 5 पैसा है, क्योंकि ये दान है वो आपको अगले जन्म में काम में आता है। कभी कभी हम देखते हैं कि एक ही फैमिली में two brothers get birth in the same family. One of them become very rich and one of them become very poor. Have you seen that? Because the karmas of that person, he might have done some good charity. So charity करनी बहुत जरूरी है, लेकिन charity भी सोच समझ के करनी चाहिए। So how to do the charity? So Krishna says in Bhagavad Gita, यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यम कार्यम एव तत्। Acts of sacrifice and charity and penances, यज्ञ दान एंड तप, ये 3 चीज है जो मनुष्य ने कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। हर एक चीज का त्याग करो, लेकिन यज्ञ, दान और तप, ये 3 चीज नहीं छोड़नी चाहिए। यज्ञ बोले तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ यज्ञ, फायर सैक्रिफाइसेस, और यू कैन डू ज्ञान यज्ञ। किसी को दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है मालूम? सबसे बड़ा दान कौन सा है? गीता दान। नॉलेज भी अलग अलग प्रकार का नॉलेज रहता है दुनिया में, है ना, है ना। नॉलेज तो बहुत प्रकार के रहते हैं ना, कुछ अच्छा भी नॉलेज रहता है और बुरा भी नॉलेज रहता है। लेकिन गीता का जो दान है, इसलिए हर साल गीता जयंती रहती है, और उसमें गीता आप अपने दोस्त, फ्रेंड, किसी को भी कुछ गिफ्ट देना है तो गीता से बड़ा कोई गिफ्ट दुनिया में नहीं है। और गीता बुक तो देना एक दान है, उसके साथ ही ये पढ़ के किसी को सुनाना, इसे ये भी बहुत बड़ा दान है। सो भगवान कहते हैं कि दान को कभी आप छोड़ो मत। तो दान कैसे करें? तो दान करने के भी प्रकार है। कभी कभी हम दान करते हैं तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि लोग दान करते हैं तो 3 प्रकार से दान किया जाता है ना। तो पहला प्रकार है कि चैरिटी इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो चैरिटी गिवन आउट ऑफ ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न। जब भी आप ये करते हैं, आप दान करते हैं और आपको कोई अपेक्षा नहीं है। क्या अपेक्षा नहीं है? मुझे ये अगले जन्म में काम आएगा, मैं ये दान दे रहा हूं तो इसका मुझे आगे फायदा हो जाएगा, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ दान करना चाहता हूं। तो इसको बोलते हैं चैरिटी इन द मोड ऑफ गुडनेस, एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस टू अ वर्दी पर्सन। कभी कभी हम दान देते हैं, लेकिन जो दान लेने वाला पर्सन है वो उसके पात्र के योग्य नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जा रहे हैं, ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं और किसी को आपने दान दिया, कोई मांगने को आया, आपने दान दिया और उसने दान लेके क्या किया? तो सिगरेट पिया, स्मोकिंग किया, अल्कोहल किया, तो फिर क्या हो गया आपका दान का? आपको पुण्य मिला या पाप मिला? क्या मिला आपको? आपने दान तो किया, लेकिन वो दान वर्दी पर्सन को नहीं किया। इसलिए देखो दान का पात्र भी कौन है ना। तो दूसरे प्रकार का दान है चैरिटी गिवन इन द मोड ऑफ पैशन। रजोगुण में जो चैरिटी करते हैं, तो क्या है? चैरिटी परफॉर्म विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ सम रिटर्न, है ना। कभी कभी हम चैरिटी करते हैं और हमारी आशा क्या रहती है? काफी लोग करते हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, एक टैक्स रिसीट मिल जाए हमें कुछ रिटर्न चाहिए उसमें से, और दूसरा है मेरा नाम वहां पे लग जाए, है ना। काफी लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं और उनके नाम से हॉस्पिटल बनता है ना, तो अपने नाम से, तो दे वांट सम रिटर्न बैक और विथ अ डिजायर ऑफ फ्रूटिटिव रिजल्ट्स। तो मैं ये दान कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसका मुझे पुण्य मिलेगा,
और पुण्य मिलने के बाद क्या हो जाएगा? मुझे उसका फल मिलेगा, और फल में क्या मिलेगा? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना? तो हम भगवान से मांगते हैं, भगवान को आरती भी करते हैं, आरती भी एक सैक्रिफाइस है, तपस्या है। तो हम क्या बोलते हैं? जय जगदीश हरे, क्या बोलते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, क्योंकि हमें कुछ आशा है, हम मांगते रहते हैं भगवान से। तो वो है भक्ति और दान इन द मोड ऑफ अ पैशन, कुछ मांग रहे हैं आप। और तीसरे प्रकार का है दान जो वो है मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमस वृत्ति में। चैरिटी परफॉर्म्ड एट एन इम्प्योर प्लेस एट एन इम्प्रॉपर टाइम टू एन अनवर्दी पर्सन विदाउट प्रॉपर अटेंशन। तो कुछ मैंने जैसे बात किया आपसे कि आपने समझो आपने लीवर डोनेट किया किसी को, लीवर डोनेशन होता है, मालूम है आपको? आपके बॉडी का लीवर निकाल दिया और आपने किसी को डोनेट किया, तो आपका लीवर वापस ग्रो होता है ना? काफी लोग लीवर डोनेशन करते हैं। हाँ, मेरे एक मित्र है, उन्होंने लीवर डोनेट किया, किडनी भी डोनेट करते हैं लोग, है ना? लीवर ग्रो हो सकता है। सो यू कैन डोनेट योर लीवर। सपोज यू डोनेट योर लीवर टू अ पेशेंट who has a cirrhosis. Cirrhosis is a disease of liver where liver is almost dead, So now the liver transplantation is happening, and you donated your part of liver because you are kind and charitable person. You are a selfless person, and you donated that liver to that person. And after taking your liver, that person starts drinking alcohol again. So your charity is in vain, zero हो गया आपका charity. आपने इतना risk लिया, you gave your life, time, energy, and that person is going to backward. So at the same time, we have to think that the person is worthy of your risk, or your charity. So that is what Krishna is